سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کا مشن وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ پاکستان کی جانب سے جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ دوست ملکوں کے سربراہان، اعلیٰ سطح وفود، عالمی مالیاتی اداروں اور ترقیاتی شراکت داروں کے نمائندے کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ کیوں پتھرائیں ہونٹوں پہ ہنسی لائیں، جانے سے پہلے ہم ایسا کر جائیں۔ پاکستان میں لاکھوں متاثرین سیلاب، عالمی برادری کی توجہ کے منتظر۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور معیشت کی بحالی کے لیے فنڈز کا اجرا وقت کی ضرورت ہے۔ جنیوا کانفرنس میں متاثرین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ جنیوا میں عالمی کانفرنس وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کے ایڈمنسٹریٹر کے حملہ بحالی کی حکمت عملی سے متعلق اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس کا مقصد پاکستان میں سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں کے لیے بین الاقوامی امداد حاصل کرنا ہے۔ پاکستان سیلاب سے ہونے والی بدترین تباہی کے نتائج بھگت رہا ہے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور عالمی برادری تعمیر نو کے لیے دل کھول کر تعاون کرے۔ سیلاب کی تباہیوں سے نمٹنے کی کوششوں میں امریکہ ہمارا شراکت دار رہے گا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر مسعود خان کا پبلک براڈ کاسٹنگ سروس کو انٹرویو۔ حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں کے ثمرات، جولائی سے نومبر کے درمیان اقتصادی اعشاریوں میں بہتری، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 57% کمی، تجارتی خسارہ بھی 26% کم ہو گیا، ٹیکس محصولات میں 17.4% اضافہ، درآمدات میں 16.2% کمی۔ معاشی چیلنجز کے باوجود زرعی شعبے کے لیے 8 کھرب روپے کے کسان پیکج کا بھی اعلان۔ الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نااہلی کی کارروائی ختم کر دی۔ منتخب ہونے کے 2 ماہ حلف نہ اٹھانے پر نااہلی کے آرڈیننس کا اطلاق اسحاق ڈار پر نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے MQM، جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ MQM کی جانب سے نئی ووٹر لسٹوں پر انتخاب کرانے کی درخواست مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے جمعے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے اسمبلی ہال میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ ایجنڈے میں شامل نہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون سمیت اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور تیاری۔ ایوان میں جانے سے قبل پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس۔ قوم عمران نیازی کے کردار، جھوٹ، فراڈ اور جال سازیوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی۔ کشمیر فروش توشہ چور فارن ایجنٹ نے منصوبے کے تحت ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار کیا۔ یہ وہ نالائق اور نااہل ہے جو ایگزامینر کو ساتھ ملا کر بھی فیل ہو گیا۔ اس شخص کے انقلابی اقدامات کی آڈیوز قوم نے سن لی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ ਧੱਕੇ ਖਾਰੀ ਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ को मैंने कहा मैं इस गले बिल्कुल काम हो नहीं रहा ना। तोड़े वाला तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। चक्कियों पे 160 रुपये रेट है। स्टोरों पे जाते हैं, वो कहते हैं जी ट्रक नहीं आया, कल आएगा, कल जाते हैं जी परसों आएगा, ऐसे ही चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो कहते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, ये सुबह से लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ने के बाद आकर लाइन में खड़े हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिलता हमें। आटा सुबह कर खड़े हैं हम नाश्ते बगैर, अभी तक हमें कोई बारी नहीं आई। कुर्सियों में अपने दफ्तरों में बैठे हैं, लेकिन अवाम देखो सुबह से हम जलील हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। पंजाब में आटे का बहरान शदीद तर, दिन भर कतारों में लगे अवाम सरापाए एहतजाज। गंदम के वसी ज़खायर के बावजूद सूबाई हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। सूबे में मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से निकल गया। 40 तेल है तो इधर 200-300 लोग खड़े हो जाते हैं।
इसलिए सरकारी आटा इधर नहीं मिलता है। हुकूमत की भी अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ना तो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है कि मतलब प्राइस कंट्रोल कर ले। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3100 रुपये हो गई। बड़ी मिकदार में गंदम की बैरून मुल्क स्मगलिंग की इत्तलात। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी और फतह पार्टी के 3 आला ओहदेदारों समेत कई सीनियर फ़लस्तीनी हुकाम के सफरी इजाज़तनामे मनसूख कर दिए। मशरक़ वस्ता में सहूनी हुकूमत के जाबराना तसल्लुत से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने लगी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल बलूचिस्तान में बारिशें। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कालाम, मालम जब्बा, अस्तोर, स्कर्दू, गुपस और बगरूट में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज। पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। मैच दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दूसरा मैच 11 जनवरी और तीसरा मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। सऊदी सहरा में डाकार मोटर रैली। 9 मरतबा के रैली चैंपियन फ्रांस के सेबास्टियन लूब ने 8वां मरहला अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन कतर के नसरुल अतिया मजमूई बरतरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। बाइक कैटेगरी में बोट्सवाना के रॉस ब्रांच सबसे आगे रहे। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से कबल की वार्म अप टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल, सर्बिया के नोवाक की अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा को शिकस्त। एडिलेड क्राउन अपने सर पर सजा लिया। जोकोविच ने कोडा को सख्त मुकाबले के बाद 6-7, 7-6 और 6-4 से हराया। और ऑस्ट्रेलिया में मिक्स्ड जेंडर यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट। अमेरिका ने इटली को शिकस्त देकर सिडनी सिटी फाइनल जीत लिया। टेलर फ्रिट्ज ने मतायो बेर्टनी को स्ट्रेट सेट्स में मात दे दी। जेसिका पागोला मार्टिना प्रोसिन को हरा चुकी। इटली के लोरेंजो मेसेटी फ्रांस के तयाफो के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी की वजह से दस्तबरदार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस अब जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनीवा पहुँच गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आला सतह वफ्द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान शामिल हैं। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के फ्रेमवर्क को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से कुदरती आफत से तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक तैयार की जाने वाली दस्तावेज भी पेश की जाएगी। आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे।
दोस्त मुल्कों के सरबराहान और आला सतह वफूद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारों और तरक्याती शराकतदारों के साथ प्राइवेट सेक्टर और NGOs के नुमाइंदों को भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत भी करेंगे। इब्तदाई सेशन से सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी खिताब करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए फराहम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का इजाला पाकिस्तान तनहा नहीं कर सकता। पाकिस्तान आलमी कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मुल्क की तामीर नौ के लिए तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक आलमी इदारों की रिपोर्ट के तनाजुर में मदद की अपील करेगा। एक तखमीने के मुताबिक हालिया सैलाब से होने वाला नुकसान $30 अरब से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की दादरसी, उनकी बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम आलम की एक बार फिर तवज्जो इस अहम मौजू पर मरकूज करवाने के लिए जनीवा कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनीवा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस में शराकतदारों और दोस्त ममालिक के सामने पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की बहाली, जिंदगी और माश की तामीर नौ और मईशत के लिए फंड्स का इजरा वक्त की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की तारीख में इंसानियत एक अहम मोड़ पर है। हमारे आज के इक़दामात आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल की तश्कील कर सकते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आओ हम कुछ ऐसा करें जो रहे जब हम न रहे, मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं, डूबे हुओं को किनारा, महरूमियों को सहारा, ये ना करे तो दुनिया में आने का क्या फायदा हमारा, हीरे कोई क्यों मारा मारा, बुझने ना पाए कोई तारा, हमारे होते कोई ना खुश हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार जनीवा में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ पाकिस्तान की बहाली की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ट्वीट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली की कोशिशों में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद हासिल करना है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही हुई है। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए दिल खोल कर ताउन करें। अमेरिका के मारूफ मीडिया इदारे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के इंटरव्यू में मसूद खान ने कहा कि हमें अगले 3 सालों में इमदाद की ज़रूरत है ताकि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का मुकाबला हो सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका जनीवा में खातिर-खा ताउन का ऐलान करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हमें लॉस एंड डैमेज फ़ंड के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के वसाइल के इस्तेमाल का असर-ए-नौ जायज़ा लेना होगा। और पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ में मसरूफ़ है, ताहम तबाही का पैमाना इतना ज़्यादा है कि इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। इसी हवाले से राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए।
जबकि मीशत को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 20 लाख घर, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 3,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 439 पुल तबाह और 40 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान पहुंचा, जबकि 10 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। पाकिस्तान सैलाब से निपटने, बहाली और तामीर नौ के लिए अपने तमाम वसाइल बुरेकार ला रहा है। ताहम बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का अजाला पाकिस्तान तनहा नहीं कर सकता, जिसके लिए आलमी बरादरी के ताउन की भी ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में 9 जनवरी को जनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें आलमी डोनर्स, तरक्याती शराकतदार और दोस्त मुल्क शिरकत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को तामीर नौ के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब होंगे, जिससे कि हम उन इलाकों में कि जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तामीर नौ के काम को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा सकें। We have taken very strong measures to provide relief and rescue these people, the families that have been affected, which are as many as 33 million people. And we are also reorienting our public sector development spendings. We are hoping the provinces will also reorient their annual development plans so that we can finalize and reconstruct the damages that have been caused to the infrastructure because of the floods. कॉन्फ्रेंस में तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए जामे रोड मैप पेश किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बायस गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 46 लाख तक पहुँच सकती है, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में 80 लाख अफराद अब तक बेघर हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए रहायश, ज़राअत और ज़रिया माश के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमत के मुश्किल फैसलों से माशी इशारियों में बेहतरी आई है। जुलाई से नवंबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक करंट अकाउंट और तिजारती खसारे में कमी आई है, जबकि टैक्स महसूलात में 17.4% का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। इत्तेहादी हुकूमत के इक़दामात से जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 57% कमी वाक़ई हुई। टैक्स महसूलात में 17.4% इजाफा हुआ। दरामदात में 16.2% कमी के अलावा तजारती खसारे में 26% कमी वाक़ई हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दिया गया है। काश्तकारों के लिए 800 अरब रुपए के तारीखी किसान पैकेज का ऐलान किया गया है। माली साल 2021-22 में जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारा 7 अरब 20 करोड़ डॉलर था, जो रवा साल के इस दौरानिये में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी दौरानिये में टैक्स महसूलात 2920 अरब रुपए थे, जबकि रवा साल के इस दौरानिये में बढ़कर 3429 अरब रुपए हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद में कारोबारी बिरादरी ने हुकूमत को मुआशी मुश्किलात से निकालने के अज़म का इयादा किया। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अगर रियल एस्टेट का सेक्टर चलेगा तो इसके साथ 60 से 70 इंडस्ट्रीज और भी चलेंगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है किसी भी मुल्क की, ये रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन के काम को, रियल एस्टेट के काम को अगर खोला जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, सहूलतें दी जाएँ, तो उसमें पूरी इकानमी चलती है। उसमें तकरीबन 40 किस्म की जो लाइन इंडस्ट्रीज़ है वो चलती है, और इस तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका खात्मा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क में टेक्सटाइल और तामीराती सनत के फ़रोग के लिए मौसर पॉलिसी साजी की। मौजूदा हुकूमत बहुत मुश्किल मसाइल में और बहुत मुश्किल वक्त में आई और मुल्क की इकानमी बिल्कुल तकरीबन एंड पे पहुंची हुई थी। इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरह मुल्क की मईशत को संभाल सके। जिस सेक्टर के ऊपर मसाइल है उनके स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाया जाए। अगर उनके स्टेक होल्डर्स को आप बैठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको रास्ता भी मिलेगा और इंशाल्लाह इसका हल भी मिलेगा। मुख्तलिफ इक्तिसादी चैलेंजेस से नंबर्द आजमा होने के बाद मुल्क की मुईशत मजीद मुस्तहकम हो रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर शहजाद वसीम ने इसहाक डार की नशस्त खाली करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स लिस्टों पर एतराज़ात से मुतालिक MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन महफूज फैसला सुना चुका है। और पंजाब असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट एजेंडे में शामिल नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास से कबल नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास असम्बली में ही तलब कर लिया है। नाज़रीन, बताते चलें आपको, पंजाब असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट आज के एजेंडे में शामिल नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास से कबल नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास असम्बली में ही तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का आज दोपहर होने वाला इजलास, जिसमें महकमा स्कूल और एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे, ताहम वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का जो वोट है उसको एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसको भी तलब कर लिया गया है और इसका वक्त जो है वो दोपहर 2 बजे रखा गया है, जिसमें मेंबरान असम्बली जो है वो वक्फ़ा सवालात पर इज़हार ख़याल भी करेंगे, जबकि नून लीग की जानिब से पंजाब के अंदर आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे, जबकि बहुत गहमा गहमी थी वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट को लेकर आज के एजेंडे में, ताहम इसे शामिल नहीं किया गया है। ये भी आपको बताते चलें कि नून लीग की जानिब से पंजाब असम्बली इजलास से कबल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास असम्बली में ही तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर व खौज किया जाएगा। नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो आज का इजलास का एजेंडा जारी किया गया उसके मुताबिक नवीद हयात से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट एजेंडे में शामिल नहीं है। पंजाब असम्बली इजलास से कबल नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास असम्बली में ही तलब कर लिया है, जिसमें मेंबरान असम्बली आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर रखा है। इस इजलास का मकसद पंजाब के अंदर आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर बात की जाएगी। इस इजलास की सदारत राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो इजलास का एजेंडा जारी किया गया है उसके मुताबिक आज पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब किया गया है और उसकी सदारत जो है सत्तायन खान इजलास की सदारत करते के मुताबिक आज जो है सवालात के अलावा जो है और तहरीक नवीद हयात हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि पंजाब असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास में महकमा सिविल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पंजाब असम्बली में हमारे नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जा रहा है पावर शो क्या करने जा रहा है? अच्छा, ये बता दें कि आप समझते हैं नंबर गेम है आपके पास? क्या समझते हैं का इलेक्शन हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है जी, इंशाल्लाह। वहाँ उसके लिए 186 नंबर चाहिए, आपके पास तो 180 के करीब भी नहीं। इन्ना साहब नहीं मैंने आंदा, लेकिन नंबर साढ़े को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौम इमरान खान के झूठ, फ्रॉड और जालसाजी की तारीख जान चुकी है। इसका इनकलाब घड़ियां चोरी करना और कौमी मफादात बेचना है। एक बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी मुश्किलात का जिम्मेदार फॉरेन एजेंट इमरान खान है। इसकी नाअहली और करप्शन की वजह से डिफॉल्ट होने का खतरा हुआ। ये वो नालायक है जो एग्जामिनर को साथ मिलाकर भी इम्तिहान में फेल हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इनकलाबी इक़दामात की ऑडियोज़ में कौम ने सुन लिए हैं। ये आदमी परवेज़ इलाही से हर रोज़ बेइज्जत होने का गुस्सा किसी और पर निकालता है।
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि मरियम नवाज की पार्टी के लिए बड़ी खिदमत हैं। उनकी बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर तकर्री शरीफ बरादरान के बाहमी मशवरे से हुई है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही और PTI के आसाब पर अदम एतमाद सवार है। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लें तो असेंबली की तहलील का ऑप्शन इमरान खान और परवेज इलाही के पास होगा। जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का रिश्ता है उसमें दरमियान में मैं या दूसरे को अंदर घुसने का और इसका कि ये हो गया वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक और कोई नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, तो दोनों मशावरत से फैसले का। वफाकी मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर 4 रोज़ा आलमी हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए हैं। तर्जुमान वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को सऊदी विजन 2030 की रोशनी में जदीद हज इंतजामात और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर सऊदी हम मनसब समेत कई अहम शख्सियात से मुलाकातें और इदारों का दौरा करेंगे। रवां साल हज दरखास्तें फरवरी के आखिर तक तलब किए जाने का इम्कान है। काबीना की मंजूरी के बाद हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया जाएगा। और जिला डेरा बुगटे में आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 35 किलो आटा 5,000 से 5200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। डेरा बुगटी में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ठट्टा में वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम आइंदा 15 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। इलाके में बारिश और सैलाब से 2 लाख अफराद मुतासर हुए थे। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से ठट्टा के सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक देने का सिलसिला 15 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। ये मुतासरीन जिनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों टंडो हाफिशा जरग चिलिया हिलायो जमपीर जंगड़ी और उसके अलावा केटी बंदर गाड़ो साकरो से सारा ये 2 माह तक मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में ठहरे थे। 2 माह के बाद उनकी बहाली का अमल शुरू हुआ था। बहाली के अमल के बाद ज़िला इंतज़ामिया वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान फ़ौज की निगरानी में इनके घरों की सर्वे किए थे। उस सर्वे के 15 दिन के बाद जो है इनको बाकायदा चेक दिए जाएंगे। सब लोगों को रिहेबिलिट करेगी गवर्नमेंट ऑप्शन। 3 लाख रुपए पर घर को देंगे और सिलसिलेवार देंगे। प्लंथ होगा 1 लाख रुपए देंगे। छत लेवल होगा 2 लाख रुपए देंगे। छत होगी 1 लाख रुपए देंगे। ये चेक जिनकी मालियत 3 लाख से 5 लाख तक होगी मरहला वाइज दिए जाएंगे। पहले इनको जो है बुनियाद के पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद दीवारें खड़ी की जाएंगी, उसके बाद जो है इनको छत के पैसे दिए जाएंगे। अस्सी शुक्रान अदा से घर जा पैसा मिलना। तासरीन उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हमें मुआवजा दे रही है जिससे हम अपने घर बना के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जी वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सेक्रेटरी इत्तलात PTV के MD और डायरेक्टर न्यूज़ पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और वकला तंजीमों को मुआवनत के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख से। जी बिलाल, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर अदालत के नोटिस पे पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि 36 चैनल्स पे जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, तो ये क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अफसरान के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये काबिल शर्म बात है इस किस्म के हथकंडे और इस किस्म की कि एक 36 चैनल्स पे चली और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न के अफसरान MD और डायरेक्टर न्यूज़ के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये तयशुदा फैसले मौजूद हैं कि एक जुर्म की एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती और आइन के जो आर्टिकल है 187 उसमें भी ये बात तयशुदा है कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले और किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में कहीं भी किसी भी सूबे में कोई खिलाफ वर्जी की जा रही हो तो उस पर कार्रवाई कर सकती है।
اور عدالت نے یہ 3 سوالات اٹھائے ہیں، جس میں سے عدالت نے اس پہ معاونت طلب کی ہے اٹارنی جنرل سے، اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور دوسرے جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں ان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 سوالوں پہ رائے طلب کی ہے، اور یہ معاملت عدالت نے ان حوالے سے طلب کی ہے کہ یہ بتایا جائے عدالت کو کہ اگر جرم اسلام آباد میں ہوا ہے، پریس کانفرنس اس طرح کے اسلام آباد میں ہوئی تھی جاوید لطیف کی، تو اس پر KPK میں اور پنجاب میں کس طریقے سے FIR درج ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس حوالے سے عدالت نے فروری کے دوسرے ہفتے میں ان فریقین کو دوبارہ نوٹس کرتے ہوئے ان سے معاونت طلب کر لی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ فوجیوں نے گزشتہ روز ایک کارروائی کے دوران ضلع پنچ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سفاق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بالا کوٹ میں کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع ڈوڈا اور کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی اور کئی علاقوں کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ مودی حکومت نے جموں خطے میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے نام پر ہندتوا دہشت گردوں میں ہتھیاروں کی تقسیم کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ راجوری کے ڈپٹی کمشنر وکاس کنڈل نے جرلان گاؤں میں دہشت گردوں کو بندوقیں اور کارتوس خود فراہم کیے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما علی محمد ساگر نے جموں کے علاقے 52 میں ایک پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئی دہلی سے چلائی جانے والی بھارتی جنتا پارٹی کی پراکسی حکومت کو مقبوضہ علاقے میں بد انتظامی کی بدترین شکل قرار دیا۔ اور پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی آٹے کا بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3200 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ صوبائی سطح پر سرکاری آٹے کے مخصوص کوٹے سے شہریوں کو آٹا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ 3 دن مسلسل سرکاری آٹے کے لیے آنے والے شہری بھی سرکاری 10 کلو گرام آٹے کے تھیلے سے محروم ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں پشاور میں موجود ہمارے نمائندے محمد سجاد سے۔ سجاد، بتائیے آج کیا صورتحال ہے پشاور میں آٹے کی، اور عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی، خیبر پختونخوا میں اگر آٹے کی بحران کی بات کی جائے تو اس وقت ہم پشاور جو باڑا روڈ ہے، یہاں سرکاری آٹا دیا جا رہا ہے۔ لوگ لائنوں میں صبح سے لگے ہیں، مگر ابھی تک یہاں جو سرکاری آٹا ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اور جو ڈیلر ہے سرکاری آٹا جن کو پہنچ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو 52 تیلے 10 kg کا 52 تیلے آٹا ان کو مل رہا ہے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ یعنی 10 kg کا جو آٹا کا جو سرکاری تیل ہے وہ 650 روپے پہ یہاں مل رہا ہے پشاور میں۔ یہاں اگر غیر سرکاری ریٹ کے بارے میں بات کی جائے تو آج یہاں ریٹ جو ہے غیر سرکاری آٹا جو 20 kg کا تیل ہے وہ 3200 روپے پہ مل رہا ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ غریب لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا ابھی مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا ریٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اپنی منمانی قیمتیں مقرر کی گئی ہے۔ پورے صوبے میں آٹے کا بحران ہے، اور پورے صوبے میں اگر جہاں بھی آپ جائیں گے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، اور جو غیر سرکاری آٹا ہے وہ تو مارکیٹ میں دستیاب ہے، مگر وہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسے خرید سکے۔ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آٹے کے حوالے سے۔ میں 3-4 دن سے اسٹوروں پر جا رہا ہوں، ایک اسٹور سے دوسرے اسٹور پر بھجوا دیتے ہیں، ادھر صرف بےعزتی ہوتی ہے، آٹا نہیں ملتا۔ جس طرح آپ نے سنا ہے شہری، میرے پیچھے بھی خواتین، بچے اور بزرگ کھڑے ہیں، وہ صبح سے کھڑے ہیں، مگر سرکاری آٹا جو 52 تیلے ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، ان کو ملنا تو یہ مشکل ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 دن سے ہم آ رہے ہیں مسلسل، مگر ان کو ابھی تک ایک تیلا جو 10 kg کا ہے سرکاری وہ نہیں ملا۔ ان کی دیہڑی بھی چلی گئی ہے اور اس کو آٹا میسر نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیل کی حکومت نے سینئر فلسطینی حکام کے سفری اجازت نامے منسوخ کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے سفری اجازت نامے کی منسوخی فلسطینیوں کے خلاف تعزیری اقدامات کے سلسلے کا ایک حصہ ہے، جس کا اعلان اسرائیل کے سخت گیر حکومت نے چند روز قبل کیا تھا۔ جن فلسطینی حکام کا سفری اجازت نامہ منسوخ کیا گیا ہے ان میں فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی اور فتح پارٹی کے 3 سینئر عہدیدار شامل ہیں۔ اور سویڈن کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ترکی نیٹو فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے ہماری درخواست منظور کر لے گا، لیکن ہم اس کی تمام شرائط کو پورا نہیں کریں گے جو انقرہ نے ہماری حمایت کے لیے رکھی ہیں۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق سویڈن کے وزیر اعظم ایلف کرسٹرسن نے سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے ہم نے جو کہا وہ پورا کریں گے، تاہم ترکی کی شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ نیٹو میں شمولیت کی درخواست پر ترکی ایسی چیزیں چاہتا ہے جو ہم انہیں نہیں دے سکتے یا دینا نہیں چاہتے۔ دوسری جانب نیٹو کے سربراہ جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ سویڈن اور فن لینڈ اس سال کے اوائل میں اس اتحاد میں شامل ہو جائیں گے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس فیصلے کا انحصار ترکی اور ہنگری کی پارلیمنٹ پر ہے۔ برازیل کے دارالحکومت برازیلیا میں سابق صدر جیر بولسونارو کے حامیوں کے حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ برازیل کے صدر لوائنزا شبولا واسولو نے امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد صدارتی محل، سپریم کورٹ اور کانگریس کا معائنہ کیا۔ پرتشدد حملوں میں تینوں عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہنگاموں میں صدارتی محل میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ سابق صدر کے حامیوں نے دارالحکومت برازیلیا میں پرتشدد مظاہروں کے دوران صدر لویزا وونو کو استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں صدارتی محل، سپریم کورٹ اور کانگریس کی عمارات کو نقصان پہنچایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ برازیل کے وزیر انصاف نے بتایا کہ برازیل کی پولیس نے سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے کے الزام کے تحت تقریباً 200 افراد گرفتار کیے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مسجد قباء اور میدان سید الشہداء آمد و رفت کے لیے گولف شٹل سروس کا تجرباتی آغاز کر دیا گیا ہے۔ 100 گولف شٹلز کے ذریعے زائرین کو ان تینوں مقامات پر آمد و رفت کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں گولف گاڑیوں میں 5 سے 7 افراد کی گنجائش ہوگی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے والے روٹس پر الیکٹرانک بسیں بھی چلائی جائیں گی اور 60 مسافروں والی ٹرین کی سہولت بھی مہیا ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے جانے والے راستوں پر 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زائرین کو سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اسکول کے بچوں کی موجیں ہوئی ختم اور پڑھائی شروع۔ لاہور سمیت پنجاب کے بھی تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کھل گئے۔ 24 دسمبر سے شروع ہونے والی موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور گھنٹی بج گئی، اسکول کھل گئے۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد وفاقی سرکاری تعلیمی ادارے بھی کھل گئے ہیں۔ 2 ہفتوں بعد اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سردیوں کی چھٹیاں ختم، سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ صبح سویرے سویٹر پہنے اسکول کے بسوں کے ساتھ بچے شدید سردی میں اسکول پہنچے۔ پہلے روز تعلیمی اداروں میں بچوں کی حاضری کم نظر آئی۔ اسکول آنے والے کچھ بچے خوش دکھائی دیے تو کچھ نے مزید چھٹیوں کا کہہ دیا۔ میرا اسکول کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو گھر ہم نے چھٹیوں میں انجوائے بھی کیا، جتنا انجوائے ہم اسکول میں کرتے ہیں اتنا نہیں، کیونکہ اسکول کی ٹیچرز بھی ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ بہت ساری چھٹیوں کے بعد آج میں اسکول آیا ہوں۔ گھر میں بیٹھ کے بور بھی ہو رہے تھے تو اب ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ آج اسکول فائنلی کھلی گئے ہیں اتنی سردیوں کے بعد، اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ گھر میں بہت بندہ بور ہوتا ہے اور ساتھ میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن اسکول کو بہت مس کیا، اسکول کی پڑھائی کو مس کیا، ایکٹیویٹیز کو مس کیا، اور آج صبح میں بہت خوش تھی کیونکہ اسکول کی ایکٹیویٹیز اور پڑھائی کو میں دوبارہ کر سکتی ہوں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ تدریسی عمل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ سردی بڑھ رہی ہے، بچے سردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد ہمارے ادارے کھل گئے ہیں اور بچوں کی آنا جو باقاعدگی سے شروع ہو گئے ہیں، اور ہماری جو کافی عرصے سے رکی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے بچوں کو تاکید کی ہے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور آپ کے اگزام نزدیک ہیں، تو آپ اچھے گرم کپڑے پہن کے آئیں۔ موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے گرم کپڑے پہنیں تاکہ بچوں کا پہلے جو پڑھائی کا نقصان ہو چکا ہے اب وہ کسی صورت پہ مزید نہ ہو۔ اس سے قبل سردی کی وجہ سے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں 1 ہفتے کے لیے چھٹیاں بڑھا دی گئی تھیں۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कला सैफुल्ला से, जहां जोब कोयटा नेशनल हाईवे पर कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस और वैन के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे में बस में सवार 7 अफराद जाम बहक और 10 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि जाम बहक अफराद और जख्मियों को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का पहला इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के सरबराह डॉक्टर मोहसिन हसन खान ने की। इजलास में शोबा इब्लाग के BS प्रोग्राम की मुकम्मल स्कीम ऑफ स्टडीज़ पर तबादला ख्याल हुआ और बोर्ड मेंबरान ने इस प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी दी। इस मौके पर शुरका ने यकीन दहानी कराई कि इस शोबे की तरक्की, पेशा वराना तजारत और मुशावरत के लिए उनकी खिदमात हर वक्त हासिल हैं। पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार सुल्तान राही को हमसे बिछड़े 27 बरस बीत गए हैं। फन के सुल्तान की यादों की एक झलक लाहौर से शुमाइला शब्बीर की रिपोर्ट में। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पैना। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुल्तान मोहम्मद अलमारूफ सुल्तान राही 1938 को भारत में पैदा हुए। फिल्मों में काम करने की लगन उन्हें फिल्म स्टूडियोज में ले जाती, जहां वो आर्ट डायरेक्टरों, हदायतकारों और कैमरामैनों के साथ इनके काम में मदद देते थे। सुल्तान राही के इसी जुनून और लगन को देखकर मारूफ फिल्म साज और हदायतकार अशफाक मलिक ने उन्हें 1956 में अपनी फिल्म बागी में एक छोटा सा किरदार दिया और इसके बाद वो बहुत सी फिल्मों में बतौर फाइटर नजर आने लगे। रफ्ता रफ्ता पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बतौर विलन अपनी जगह बना ली। मारूफ फिल्म साज और हदायतकार असलम डार की फिल्म बशीरा में सुल्तान राही को पहली बार हीरो का टाइटल रोल मिला, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में नई पहचान अता की। नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। बशीरा के बाद फिर मैंने पिक्चर की वैशी जट, हसन अस्करी साहब ने उसका एक कैरेक्टर बना दिया गंडासे का। सुल्तान राही मास्टर डिग्री रखने वाले तालीम याफ्ता उर्दू घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में काम किया। कौन है चट्टिया ते किधर चली है? ते मुखो ना है, घ्यो बेचनी है ते मौले जट नु वेखन चली है। ओ तू मौले नु वेख के की कर रहा है? मुस्तफा कुरैशी के साथ इनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही और दोनों के एक्शन और मकालमे आज भी फिल्म बीनों के दिलों में ताज़ा हैं। जंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक कोने नी नट्टा, रोटी कटनी नहीं चाहिए, एक करी न कर सोया। मेरी पहली फिल्म भी उनके साथ थी और आखिरी उसकी फिल्म भी मेरे साथ थी। वैशी जट से सफर शुरू और सखी बादशाह तक पहुंचा। उन्होंने एक डायरेक्टर से कहा था कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब तन सिवाय मेरे कोई नजर नहीं आएगा, और वो वक्त आया। मैंने अपने फन के साथ इतना पैशन इससे पहले किसी एक्टर में नहीं देखा। फन का ये अजीम सुल्तान 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया। सुल्तान राही का नाम और काम फिल्मी तारीख और फिल्म बीनों के जहनों में हमेशा जिंदा रहेगा। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और हौसला बुलंद और हिम्मत जवां हो तो कोई भी माजूरी इंसान की मजबूरी नहीं बन सकती। बुरहान फरीद ऐसे ही एक फर्द हैं जिन्होंने माजूरी को कामयाबी की राह में हायल नहीं होने दिया। आसिम नजीब भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान के इलाके बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान फरीद चिश्ती ने आंख तो माजूरी में खोली, लेकिन वालिदैन की शफकत और मेहनत ने उन्हें बाकमाल बना दिया। मुझे अम्मी अबू ने मोहताज नहीं किया, ना उनके ना किसी और के। शादी के बाद हम पहली दफ़ा आए हैं पाकिस्तान, तो वाइफ साहब है वो भी खुश है, फैमिली भी ये इधर है, अम्मी अबू भी इधर हैं। नार्वे में मुकीम बुरहान चिश्ती को दुनिया भर में उनके चाहने वाले बोबो के नाम से जानते हैं। बोबो यूरोप, अमेरिका और दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक में इवेंट मैनेजमेंट, चैरिटी वर्क और अपने ब्रांड की वजह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वहाँ मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, वहाँ सुबह उठता हूँ, जो मेरी नॉर्मल रूटीन होती है, मेरे पर्सनल असिस्टेंट आते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। अब तो खैर वाइफ भी है, वो भी कर देती है। तो सुबह उठ के तैयार होकर मैं अपना निकल जाता हूँ, वो अपना निकल जाती है। बंदे को जिस हाल में भी हो, बंदा को शुक्र अदा करना चाहिए। तकरीबन पिछले 10 साल से मैं तो अलमुदस्सिर ट्रस्ट खारिया में जो है वो डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका दिल करता है आप और करें कुछ। बुरहान बोबो का मानना है कि अगर नीयत साफ और कुछ कर गुजरने की लगन हो तो दुनिया में कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती।
برہان چشتی المعروف بوبو کی زندگی ہر اس پاکستانی کے لیے قابل تقلید مثال ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے علاقے شیلا باغ میں بنائی گئی ریلوے سرنگ ہمارا قیمتی ورثہ ہے جو سیاحوں کے لیے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس تاریخی مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے شیلا باغ میں واقع خوجک ٹنل کے نام سے جانی پہچانی جانے والی ریلوے سرنگ تاریخی پس منظر کی حامل ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں دفاعی نقطہ نگاہ کے پیش نظر ریلوے لائن اور سرنگیں بنائی گئیں، جس کی منظوری وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے باقاعدہ طور پر 1876 میں دی۔ یہ بہت تاریخی جگہ ہے۔ 1910 میں لگا ہوا ہے ہمارا باغ، 1945 میں پنشن ہو گیا۔ خوجک ٹنل کی تعمیر کا آغاز 1888 میں شروع ہو کر 1891 میں اختتام پذیر ہوا۔ قریباً 3 میل لمبی خوجک ٹنل میں آج بھی ریل گزرتے وقت سرنگ کے دہانے پر قداور آئینے سے سورج کی روشنی منعکس کر کے ٹرین کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ خوجک یا شیلا باغ سرنگ کے نام کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ تجزیہ نگار اور محققین اسے اس زمانے کی مشہور رقاصہ شیلا کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ 1891 میں تعمیر کی جانے والی خوجک ٹنل آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جو بنانے والوں کی کمال مہارت کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کا عظیم شاہکار بھی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیلا باغ۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے ضلع گانچے کا، اور آپ کو آگاہ کریں کہ گانچے میں رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ خپلو شہر اور گرد و نواح میں 2 جبکہ بالائی علاقوں میں 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ شدید برف باری سے خپلو شہر سمیت ضلع بھر میں ٹریفک معطل رہی۔ برف باری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ رات سے منقطع ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اور اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ گوپس میں -8، ہنزا -7، پارا چنار -6، سکردو -4 اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین اب بات کریں گے دھند کی صورتحال کی، اور آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقے ان دنوں شدید دھند اور سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ شاہراہوں اور موٹر ویز پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ملتان قومی شاہراہ پر اڈا شنال سے موسیٰ والا تک شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ اوکاڑا، وزیر آباد، حاصل پور، پیر محل، چیچا وطنی، غازی آباد اور دیگر علاقوں میں بھی شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ دھند کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوران سفر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ دھند اور سردی کی شدت میں اضافے کے باعث اساتذہ اور طلباء کو تعلیمی اداروں میں پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔